Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CSNSR. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss about the tax audit limit. Tax audit limit for assessment year 2022-2023 and financial year 2021 and 2022 for business and for profession. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CSNSR and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So regarding this today's very important topic, because now it's the time for the tax audit. So we'll discuss about the what's the limit of tax audit, like what's the sales, turnover, gross received, either it's a 50 lakh rupees or the 1 crore or the 2 crore or the 10 crore for the business or for the profession. All we will discuss. And also whether the tax audit is possible if turnover gross receipt does not exceed 1 crore. Means 1 crore से भी कम अगर हमारी gross receipts है in case of business, then can also possible tax audit. So all we will discuss. And before that, one disclaimer is there. These all are my personal views and can't be constitute the views of the ICI, CSNSR or any other person or any other authority. And purpose of this video is to just spread knowledge, information, awareness, and shall not be treated as solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. And it shall not be used for any legal advice, legal opinion, and shall not be rendered any professional opinion, professional advice. And please, my request to all of you, please also check the ICI guidance note on tax audit, and then also income tax relevant sections, relevant notification, relevant circular. So all this you can check, and this is one disclaimer for this video. And now let's go to the section 44AB of the Income Tax Act 1961. First, let's see the language of the act, जो law की language है. Then we'll discuss one by one through the flow chart and through the example. In detail, we will discuss about the tax audit limit. So section 44AB, it talks about audit of accounts of certain persons carrying on business or profession. So business, if some person is carrying business, उसके लिए क्या लिमिट है tax audit limit? Or if some person is doing some profession, then what's the tax audit limit? So section 44AB talks about every person, clause A, carrying on business shall, if his total sale, turnover or gross receipts, as case may be, in business exceed or exceeds 1 crore rupees in any previous year. So in case of business, if any person carrying any business and if his total sale, like it's a manufacturing business or trading or service, any business is there. So in that case, अगर उसकी total sale, turnover or gross receipts in the previous year, in any previous year exceeds rupees 1 crore, means up to 1 crore, no need for tax audit in case of a business as per clause A of section 44AB. पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट थिंग इज 1 crore तक नो टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ क्लोज ए, एंड फॉर द पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ हिज टोटल सेल, टर्नओवर और ग्रोस रिसीव्स एक्सीड और एक्सीड्स. तो एक्सीड्स है अगर 1 crore रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो टैक्स ऑडिट एलिजिबल हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज provided that in case of person whose aggregate of all amount received, including amount received for sales, turnover or gross received during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount. So this provided is because of government wants to promote the digitalization, कि आप जितना ज़्यादा digital payment करें तो they are promoting. So if your aggregate payment and aggregate receipts 95% से ज़्यादा आपकी डिजिटल मोड में है, then this amount 1 crore जो 1 crore rupees है, it should be 10 crore rupees.
तो अगर आपकी जो एग्रीगेट पेमेंट है या एग्रीगेट रिसीव्स, दीज बोथ कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. अगर दिस डज नॉट एक्सीड्स 5%, दोनों केसेस में 5% है, एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट्स एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसीव्स. तो इन बोथ केसेस में कि अगर आपकी कैश में रिसीव्स या कैश में पेमेंट 5% से ज़्यादा नहीं है, देन दिस अमाउंट वुड बी 10 करोड़ रुपीस. दिस इज आल्सो इन सेक्शन 44AB क्लोज ए. इसके ऊपर पूरा अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ जस्ट वी आर सीइंग द लैंग्वेज ऑफ द लॉ. सेक्शन 44AB का जो सेक्शन है उसमें क्या लैंग्वेज है. देन प्रोवाइडेड फर्दर that the purpose of this clause, the payment are receipts as case may be by a check drawn or on a bank or by a bank draft, which is not account pay, shall be deemed to be the payment are received as case may be in cash. कि अगर आपकी जो एग्रीगेट पेमेंट एग्रीगेट रिसीप्ट्स है, अगर आपने कोई पेमेंट करी या आपके पास कोई रिसीप्ट्स आई, इफ इट्स नॉट थ्रू द अकाउंट पे चेक, और अगर ड्राफ्ट के थ्रू इट्स नॉट बाय द अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, देन it will be considered as the cash payment received. This is very, very important update. This is very important that you have to check. Then clause B of section 44AB, it talks about carrying on profession. कि अगर कोई professionals है, तो in that case, if his gross receipts in the profession exceeds 50 lakh rupees, तब टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा. एक्सीड्स 50 लाख रुपीस, उस केस में क्या था, जो क्लोज ए में था, एक्सीड्स 1 करोड़ और एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस. इफ टू कंडीशन फुलफिल्ड तो एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस. देन क्लोज सी में, क्लोज सी टॉक्स अबाउट सम प्रिजम्पटिव इनकम्स है जो सेक्शन 44BB, 44AE, 44BBB में है, दैट यू हैव टू शो सम अमाउंट्स इन दिस प्रिजम्पटिव इनकम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में. तो इन दैट केस अगर आप उतना शो नहीं करते, देन यू हैव टू गो फॉर द टैक्स ऑडिट. इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड सेम थिंग 44AB क्लोज डी एंड क्लोज ई, इट टॉक्स अबाउट 44AD एंड 44ADA. 44AD कौन opt करते हैं? In case of business, some eligible assessees are there, some eligible business are there. इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट 44AD एंड 44ADA के ऊपर. 44ADA इज बेसिकली फॉर द प्रोफेशनल्स. ये प्रोफेशनल्स के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं एंड इन केस आप उतनी इनकम जो वहाँ पे 50% आपने शो करी है उससे कम शो करते हैं, एंड इफ इट्स एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स, तो इन दैट केस यू हैव टू गो फॉर द ऑडिट एज पर क्लोज डी ऑफ सेक्शन 44AB और 44AD में क्लोज ई ऑफ सेक्शन 44AB. तो दिस इज रिगार्डिंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44AB कि आपको कब कब टैक्स ऑडिट करवाना है. तो इन दैट केस व्हाट इट सेज, get his accounts of such previous year audited by an accountant before the specified date and furnished by that date the report of such audit in the prescribed form duly signed and verified by such accountant and setting forth such particular as may be prescribed. तो आपको अपने accounts ऑडिट करवाने हैं. फ्रॉम अकाउंटेंट की डेफिनेशन वहाँ पे 288 में दी हुई है, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाने हैं आपको. बिफोर स्पेसिफाइड ड्यू डेट आपको रिपोर्ट फर्निश करनी है फ्रॉम 3CA, 3CB, 3CD. इसके ऊपर भी पूरा डिस्कस करेंगे. एंड देन नेक्स्ट, प्रोवाइडेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड दैट द सेक्शन shall not apply to the person who declare profit and gain for the previous year in accordance with the provision of subsection 1 of section 44AD and his total say turnover or gross receipts as case may be in business does not exceed 2 crore rupees in such previous year. कि अगर वो 44AD में वो ऑप्ट करता है, 44AD के ऊपर आई टोल्ड यू कि 44AD के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे. तो 44 में अपनी इनकम डिक्लेयर करता है, जो वहाँ पे परसेंटेज है 8% और 6%, वो इनकम डिक्लेयर करता है. और उसकी टर्नओवर, ग्रॉस रिसीव्स टर्नओवर या सेल्स डज नॉट एक्सीड्स 2 करोड़ रुपीस, तो उस केस में 44AB इज नॉट एप्लीकेबल. सो दिस इज रिगार्डिंग द
language of section 44AB. Now let's check about the through the flow chart. उसके ऊपर पूरा डिस्कस करते हैं. Before that, this presumptive income, जो presumptive income या presumptive taxation के हमारे जो सेक्शन है 44AD, 44ADA, 44AE, 44B, 44BB, 44BBA and 44BBB. So in this case, which are the activities and which are the deemed profit एंड किस सेक्शन में प्रोविजंस में आपके टैक्स ऑडिट के लिए टॉक्स अबाउट और टैक्स ऑडिट प्रोविजन किस में. बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, आपका जो टैक्स ऑडिट है दिस इज इन सेक्शन 44AB में. सेक्शन 44AD या फिर सेक्शन 44AE आपको टैक्स ऑडिट के बारे में नहीं बोलेगा. इट टॉक्स अबाउट गो टू सेक्शन 44AB एंड डू द टैक्स ऑडिट. फॉर एग्जांपल 44AD, दिस इज फॉर द बिजनेस. अगर बिजनेस opt करता है उसके लिए भी some eligible assessees there, then eligible business are there, and if they availed, तो उसमें जो आपके सेक्शन है 44AD सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5, इट टॉक्स अबाउट द टैक्स ऑडिट. एंड टैक्स ऑडिट कहाँ पे होगा? आपका सेक्शन 44AB क्लोज ई में. तो इसमें भी पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे कि अगर अवेल करते हैं तो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको नहीं अवेल करते तो आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा फॉर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए. देन 44AD, दिस इज फॉर द प्रोफेशंस. प्रोफेशन में अगर आप लिमिट से कम करते हैं डीम्ड प्रॉफिट जो आपका 50% है, देन यू हैव टू गो फॉर द ऑडिट. इसमें भी सेक्शन 44AD 4 में एंड आपका 44AB क्लोज डी में. देन सेम विद द गुड्स कैरेज शिपिंग ऑफ 44B में शिपिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट, तो उस केस में तो नॉट अलाउड. तो दीज आर सम प्रिजम्पटिव इनकम और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जिसके ऊपर पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. देन प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, दिस इज थ्रू द फ्लो चार्ट. जो हमारा सेक्शन 44AB क्लोज बी है, दिस इज फॉर द प्रोफेशन. पहले हम एक बार प्रोफेशनल्स के लिए चेक करते हैं. इफ सम प्रोफेशनल्स आर देयर, तो सेक्शन 44A में दे हैव described about the profession, specified profession, non-specified profession, but here it's 44AB में क्लोज बी में it talks about the profession. इसमें bifurcate नहीं किया. तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर आपकी टर्नओवर और ग्रोस रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर मोर देन 50 लाख रुपीज है, मोर देन 50 लाख रुपीज, अगर 50 लाख से 1 रुपीज भी ज्यादा है तो आप चाहे 50% प्रॉफिट दिखाओ, ना दिखाओ, कम दिखाओ, कुछ भी करो, tax audit is applicable for the assessment year 2022-2023. Clear कि for professionals, जो professionals हैं उस केस में अगर आपकी टर्नओवर और ग्रोस रिसीव्स 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो इन दैट केस योर टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी. इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट आप कुछ भी दिखा दें. एंड देन सेकंड केस, अगर आपकी टर्नओवर और द ग्रोस रिसीव्स अप टू 50 लाख रुपीज है, अप टू 50 लाख, देन आपको इफ यू ऑप्ट फॉर 44AD और ADA जो आपके प्रोफेशनल्स के लिए, इसके ऊपर भी पूरे डिटेल डिस्कस करेंगे. तो अगर आप अपना प्रॉफिट 50% और मोर शो करते हैं देन आल्सो, देन इन दैट केस टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल. क्लियर. एंड थर्ड केस, अगर आपकी टर्नओवर ग्रोस रिसीव्ड 50 लाख रुपीज तक है और सेक्शन 44ADA में आप लेस देन 50% अपना प्रॉफिट शो करते हैं, अपने इनकम का जो आप शो कर रहे हैं वहां पे, तो इन दैट केस ऑडिट वुड बी कंपल्सरी. सो फॉर प्रोफेशंस these 3 cases are there under section 44AB क्लोज बी में. इन these cases आपका कब कब टैक्स ऑडिट कंपल्सरी है, व्हाट इज द लिमिट, जो 50 लाख रुपीज आप लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो. बट अगर आप 44ADA ऑप्ट कर रहे हो और अगर आप उसमें प्रॉफिट लेस शो करते हो, जो आपकी इनकम लेस शो कर रहे हो, देन टैक्स ऑडिट वुड बी एप्लीकेबल. देन नाउ लेट्स सी अबाउट द बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 22-23. बिजनेस के केसेस में इसको हम चेक कर सकते हैं. फर्स्ट केस, इफ द बिजनेस ऑप्टिंग फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, जो प्रिजम्पटिव इनकम या टैक्सेशन स्कीम है अंडर सेक्शन 44AD, और सेकंड केस है वो ऑप्ट नहीं करता सेक्शन 44AD. तो इस केस में कौन सा सेक्शन हमारा एप्लीकेबल होगा? 44AB क्लोज ए. तो 44AD में इसके ऊपर आई टोल्ड यू पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे. कुछ एलिजिबल एसएससी हैं हु कैन ऑप्ट 44AD लाइक इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP. They should be resident. तो they can only opt for the if they have the business, और उसमें भी कुछ businesses they are not eligible, उसकी पूरी डिटेल है. And they have to show some
इनकम कि आपको इतना शो करनी है, इनकम 8% या 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर, अगर 6% शो कर रहे हो तो सारी पेमेंट बैंक के थ्रू होनी चाहिए। आई टोल्ड यू। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस केस में 44AD कौन ऑप्ट कर सकता है, जिसकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ रुपीज है। और पीछे हमने चेक किया था 44AB इज नॉट एप्लीकेबल, जो अभी पीछे हमने ये चेक किया था प्रोवाइडेड में दिस वन, this 44AB is not applicable, no this one, हाँ this 44AB is not applicable अगर 44AD में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं जो अमाउंट स्पेसिफिक है 8% और 6%, तो 2 करोड़। सो वन टर्नओवर इज 44AD में अगर आप ऑप्ट कर रहे हो 2 करोड़ तक एलिजिबिलिटी है आपकी, तो उस केस में भी अगर आप अपनी इनकम 8% या 6% शो करते हो, देन आल्सो यू डोंट नीड टू गो फॉर द टैक्स ऑडिट। सो एक जो हमने पीछे डिस्कस करी थी लिमिट प्रोफेशनल्स के लिए 50 लाख रुपीस, अनदर लिमिट बिजनेस इफ ऑप्ट फॉर 44AD, तो उस केस में लिमिट आपकी 2 करोड़ रुपीस अगर आप उतना 8% 6% शो करते हो। नाउ इफ ही आर नॉट ऑप्टिंग, कोई बिजनेसमैन है नॉट ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD में, 44AD कौन ऑप्ट कर सकता है, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट LLP। सो अगर कंपनी है तो वो तो उस केस में जाएगी नहीं। सो कोई LLP है देन आल्सो नोट फॉर दैट, तो उनके लिए तो यही है। टर्नओवर कौन सी है, आइदर 1 करोड़ रुपीस, जो 44AB में हमने चेक किया था क्लोज ए में, कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड्स है देन टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी। टोटल रिसीप्ट जो आपकी टोटल सेल्स है, टोटल टर्नओवर है या टोटल ग्रोस रिसीप्ट्स है, वो एक्सीड्स 1 करोड़ है तो आपका टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी। बट प्रोवाइडेड जो दो कंडीशंस थी, प्रोवाइडेड 2 कंडीशंस वाज देयर, कि अगर आपकी एग्रीगेट ऑफ ऑल रिसिप्ट्स एंड एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट इन कैश ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड्स 5%, अगर वो 5% से एक्सीड्स नहीं है देन दिस लिमिट विल गो टू 10 करोड़ रुपीस। और उसमें भी प्रोवाइडेड था कि अगर आपकी जो ये पेमेंट्स या जो रिसिप्ट्स है, अगर आप अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट में नहीं पे करते, देन दिस विल बी कंसिडर्ड एज द कैश पेमेंट। सो नाउ फोर लिमिट वी हैव सीन, फर्स्ट फॉर प्रोफेशनल 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस तक कोई टैक्स ऑडिट नहीं। देन अगर 44AD ऑप्ट कर रहे हैं देन 2 करोड़ रुपीस provided some conditions are there 8% 6%। then अगर क्लोज ए ऑफ सेक्शन 44AB 1 करोड़ रुपीस फॉर बिजनेसमैन नॉट ऑप्टिंग 44AD, तो आपकी 1 करोड़ लिमिट है, 1 करोड़ से एक्सीड्स है तो यू हैव टू गो फॉर द टैक्स ऑडिट। एंड देन अगर 2 कंडीशंस, अगर आपकी डिजिटल पेमेंट्स हैं सारी आपकी 95% से मोर, देन दिस अमाउंट शुड बी 10 करोड़ रुपीस, कि 10 करोड़ रुपीस तक आपको टैक्स ऑडिट नोट रिक्वायर्ड। देन कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस सेक्शन 44AB के ऊपर। जो 10 करोड़ रुपीस जो लिमिट है, 10 करोड़ रुपीस में बोथ दिस कंडीशंस, दोनों की दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना है। लाइक बोथ द कंडीशन, अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती देन ये 10 करोड़ लिमिट नहीं होगी, यू हैव टू गो फॉर द 1 करोड़ रुपीस, आपका 1 करोड़ रुपीस में, एंड द टैक्स ऑडिट कंपल्सरी हो जाएगा। एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश do not exceeds 5% of said amount, this said amount is also very important, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। then aggregate of all amount made in cash do not exceed 5% of said payment। तो I told you गवर्नमेंट वांट ऑल पेमेंट शुड बी डिजिटलाइज, कि सारी आप डिजिटल पेमेंट करें, आप NEFT या अकाउंट पे चेक सारे दे आर प्रमोटिंग, दैट्स व्हाई दे हैव इंक्रीज दिस अमाउंट टू 10 करोड़ रुपीस। सो इफ बोथ दीज कंडीशंस, कि अगर आप 5% तक है आपकी जो कैश की रिसिप्ट्स हैं जो टोटल की, या फिर पेमेंट्स आपकी 5% तक है, देन दिस अमाउंट जो 1 करोड़ रुपीस था वुड बी 10 करोड़ रुपीस, कि 10 करोड़ तक नो टैक्स ऑडिट, 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आपकी टैक्स ऑडिट होगा। एंड जो हमने अभी लास्ट में भी प्रोवाइडेड चेक किया था, कि अगर आपकी नॉन अकाउंट पे चेक या नॉन अकाउंट पे ड्राफ्ट है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज कैश। सो इफ देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपकी कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, कैश रिसिप्ट को आपको कंपेयर करना है विद द टोटल रिसिप्ट्स। आप कैश अकाउंट में चेक करोगे
कैश में आपका एक टोटल रिसिप्ट्स होगी, एक टोटल पेमेंट्स है। यू हैव टू कंपेयर इट, जो उसको कंपेयर करना है सेपरेटली कंपेयर करना है, आपको एग्रीगेट नहीं कंपेयर करना, ये सेट ऑफ करके कंपेयर नहीं करना। कैश रिसिप्ट्स को टोटल कैश रिसिप्ट से, कैश टोटल कैश रिसिप्ट को टोटल रिसिप्ट से, कैश पेमेंट को टोटल पेमेंट से आपको कंपैरिजन करना है कि 5% की लिमिट में है या नहीं है। देन आई टोल्ड यू कि आपको उसको एग्रीगेट कंपेयर नहीं करना। देन सेड अमाउंट, जो ये सेड अमाउंट आई टोल्ड यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेड अमाउंट, सेड अमाउंट मीन्स टोटल रिसीव्स। दिस इज नॉट टर्नओवर और सेल। टोटल रिसीव्ट्स आर देयर, कि आपकी कितनी रिसीव्ट्स हैं उसमें। हो सकता है आपके रिसीव्ट्स में आपके डेटर से भी कुछ पेमेंट रिसीव हो सकती है, कुछ आपने इन्वेस्टमेंट सेल कर सकते हैं, उसकी भी पेमेंट रिसीव। दैट्स द टोटल रिसीव्ट्स। एंड सेम विद द सेड पेमेंट में टोटल पेमेंट्स। आपको टर्नओवर का नहीं चेक करना, टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट्स या सेल्स का चेक नहीं करना। आपको सेड अमाउंट में जो आपको पेमेंट हुई है या रिसिप्ट्स हुई है, दैट वुड बी फॉर द टोटल रिसिप्ट्स एंड द टोटल पेमेंट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द ट्रांजेक्शन, इफ द एसएससी डूइंग ट्रांजेक्शन इन द फॉलोइंग मोड्स, अगर इस मोड्स में है, देन इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैश। तो कौन कौन से? फर्स्ट, अकाउंट पे ही चेक। सेकंड, अगर पेमेंट या कैश रिसिप्ट है डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू। देन क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स हो रही है, रिसिप्ट्स डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं। दिस हैज बीन क्लैरिफाइड बाय द सीबीडीटी इन इट्स सर्कुलर। तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो दीज आर नॉट कैश पेमेंट, दीज आर द बैंक ट्रांजेक्शंस। देन कैश रिसिप्ट्स, जो कैश रिसिप्ट्स है 5% की जो लिमिट्स है, जो 5% की लिमिट है इन कैश और पेमेंट, जो इसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया टोटल रिसिप्ट्स में। तो टोटल रिसिप्ट जो कैश में है, अभी आई टोल्ड यू, इट्स नॉट ओनली सेल्स, जो आपकी कैश सेल्स है या फिर आपकी ग्रोस रिसिप्ट है या टर्नओवर है। इसमें और भी आपको बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। क्या क्या है? अगर आपकी कोई रिसिप्ट है ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, receipts from debtors for the current year, sales outstanding from earlier years, अगर आपको डेटर से कुछ रिसिप्ट हुई है, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल्स ऑफ स्क्रैप, and then receipts of loans and advances, trade advances, receipts of deposits, sales of investment. तो ये these all are included in the receipts. सेम थिंग विद द कैश पेमेंट्स, जो आपकी कैश पेमेंट्स हैं। अगर आपने जो पेमेंट्स करी है, पेमेंट टू परचेज, payment to creditors for the current year purchase, purchase of fixed assets and capital expenditure, payment for salary, electricity, telephone charges and other revenue expenditure, payment for insurance, repayment of loans and advances, कोई loans दिए आपने, trade advances given, deposits made, etc. तो these also included in the cash payments. देन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44A(b) जो क्लोज ए में है, कुछ आपको इंक्लूड करने हैं, कुछ एक्सक्लूड करने हैं। तो आपका जो 5% ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो आपके 5% ट्रांजेक्शन्स हैं, आप जो चेक करोगे, ऐसा नहीं है कि टोटल कैश पेमेंट्स हैं या टोटल कैश रिसिप्ट्स हैं, सारा उसको लेके आपको उसका चेक कर देना। नो। तो फर्स्ट थिंग जो आपने 5% की लिमिट चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर सम कॉन्ट्रा एंट्रीज, लाइक आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवाया या फिर यू हैव विड्रॉन द कैश फ्रॉम द बैंक, तो दैट बी एक्सक्लूडिंग। जो आपको कैश आप चेक करोगे, कैश पेमेंट या कैश रिसिप्ट्स, टोटल रिसिप्ट्स में आपको चेक करना है कि टोटल रिसिप्ट में इफ यू हैव विड्रॉन, अगर आपने कुछ विड्रॉ किया बैंक से, तो उसको कैश में से आप एक्सक्लूड कर दीजिए। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी काफी डिस्प्यूट्स है। सम पीपल आर सेइंग इट शुड बी इंक्लूडेड, सम पीपल आर सेइंग इट शुड बी एक्सक्लूडेड। बट इन द जो इनकम टैक्स के फॉर्म्स है, उसमें दे हैव शोन लाइक इट शुड बी इंक्लूडेड। बट इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप इफ ही इज कंट्रीब्यूटिंग, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, तो इट मींस इट्स ही इज डूइंग फॉर ओन, लाइक मैंने अपनी पॉकेट से निकाल के यहाँ पे रखी है। तो इट डजंट मीन्स कि दिस इज फॉर द बिजनेस, आप बिजनेस के लिए तो कर रहे हो, बट फॉर कैश पेमेंट इट शुड बी एक्सक्लूडेड।
बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन है बाय द पार्टनर्स, देन इट शुड बी इंक्लूडेड. देन अनदर वन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई डायरेक्ट कैश डिपॉजिट करवा दिया आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में, तो इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, अजय कुमार सिंह, दिस वन हाई कोर्ट का 2020 का केस लॉ है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का. तो दिस कैश डिपॉजिट, अगर कोई कैश डिपॉजिट कस्टमर ने करवाया, देन इट शुड बी इंक्लूडेड. देन अनदर केस, अगर आपने कोई क्रेडिटर, सेम रिवर्स में केसेस है, वहां पे आपके कोई कस्टमर ने डिपॉजिट करवाया, हेयर यू आर डिपॉजिटिंग, अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो देन आल्सो इंक्लूडेड, तो इसको कैश पेमेंट्स मानी जाएगी. देन रिसिप्ट्स पेमेंट इन बियरर चेक, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इफ इट्स नॉट थ्रू द अकाउंट पे चेक, अगर अकाउंट पे चेक के थ्रू नहीं है, देन आल्सो इट्स द पार्ट ऑफ कैश, दिस इज द कैश पेमेंट. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो एंड आल्सो अगर वो कैश में है, देन आल्सो इट्स द पार्ट, उसमें कोई बाइफर्केशन नहीं है, इट्स द कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें कोई भी बाइफर्केशन नहीं है. देन टैक्स ऑडिट लिमिट के ऊपर जो है हमारा, लेट्स गो बाय एग्जांपल, वन बाय वन एक एग्जांपल चेक करते हैं. फर्स्ट केस इज द केस ऑफ ए कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹7 crore. तो इस केस में लेट्स सी टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल और नो. तो फर्स्ट थिंग इज देयर कि टू कंडीशंस आर देयर, जो अगर 95% से ज्यादा आपकी डिजिटल पेमेंट एंड डिजिटल रिसिप्ट्स है, तो इन दैट केस टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल. बट अगर वो both the conditions are not fulfilled, then tax audit is applicable. So first thing is sales amount. आपकी सेल्स अमाउंट 6 crore rupees रिसीव्ड इन बैंक, सेल्स अमाउंट रिसीव्ड इन कैश 20 lakh rupees, बोरोइंग इन बैंक 80 lakh rupees, टोटल रिसिप्ट आपकी कितनी 7 crore rupees की. और यहाँ पे आपका रिसिप्ट में कैश रिसिप्ट कितना है. सो अभी बाई चांस है दिस रिसिप्ट्स एंड द टर्नओवर बोथ आर द सेम, बट इट कैन बी डिफरेंट, बोथ कैन बी डिफरेंट. तो आपका कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट्स के लिए ओनली 20 lakh rupees. सो हाउ मच अमाउंट, दिस इज 2.85. तो दिस इज विद इन द लिमिट ऑफ 5%, कि आपको 5% तक कैश रिसिप्ट्स है. एंड इन केस ऑफ पेमेंट में आपने एक्सपेंसेस थ्रू बैंक करे 1.1 crore, इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक 80 lakh, कैश एक्सपेंडिचर 10 lakh rupees, टोटल पेमेंट आपकी 2 crore rupees. तो 10 lakh of 2 crore 5%, दिस इज आल्सो विद इन द लिमिट. सो बोथ द कंडीशंस, जो हमारी दोनों कंडीशंस थी, 5% ऑफ द 5% cash receipts of said amount and 5% cash payment of said amount, both this condition has been fulfilled. दोनों आपकी कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है. तो इन दिस केस जो आपकी लिमिट है 10 crore rupees है, बट हेयर द टर्नओवर इज 7 crore, सो टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल. नाउ इन केस सेकंड, जो एग्जांपल सेकंड, तो अगर कंपनी की टर्नओवर 9 crore rupees है, in this case total receipts and total payment, we have to check both the conditions कि लिमिट के विद इन द लिमिट है और नॉट. तो हेयर सेल्स, जो कैश सेल्स है, इट्स 1.2 crore, जो बैंक के थ्रू सेल्स है इट्स 4.8 crore. तो टोटल सेल इज 6 crore rupees. देन रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स से जो आपको रिसिप्ट्स भी 30 lakh rupees, चेक के थ्रू मिली 15.7 lakh, टोटल 16 crore. लोन रिसिप्ट्स जो आपके कैश में नील है, चेक के थ्रू है 3 crore rupees, टोटल दिस वन. सो कैश की आपकी रिसिप्ट टोटल कितनी है 1.5 crore, चेक में 23.5 crore एंड टोटल रिसिप्ट 25 crore. सो सी नाउ दिस इज द डिफरेंस, टर्नओवर आपकी 9 crore एंड दिस टोटल इज 25 crore. सो यू हैव टू चेक दैट सेड अमाउंट, टोटल रिसिप्ट जो पीछे हमने डिस्कस किया था. तो नाउ व्हाट्स द परसेंटेज, आपकी कैश रिसिप्ट कितनी है 1.5 crore, टोटल रिसिप्ट 25 crore. तो दिस इज 6%, लिमिट कितनी है 5%. सो मीन्स कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. आप दूसरी भी चेक करना चाहते हो देख सकते हो, बट एक कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मीन्स टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल. दूसरा भी आप चेक कर सकते हो, आपकी कैश 0.32 crore 32 lakh rupees, चेक के थ्रू जो एक्सपेंडिचर है 1.18 crore, टोटल 1.5 crore, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 5 crore rupees, लोन पेमेंट 1.5 crore, टोटल 8 crore, कैश 0.32 crore. तो दिस इज 4%, मीन्स दिस इज विद इन द लिमिट. तो आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, बोथ दिस कंडीशन, जो आपकी रिसिप्ट्स की भी है एंड पेमेंट्स की. बट इन दिस केस ओनली वन कंडीशन फुलफिल, जो पेमेंट्स की है. तो इन दिस केस आपकी टैक्स ऑडिट वुड बी एप्लीकेबल. तो जो आपकी लिमिट होगी दैट वुड बी 1 crore rupees.
1 करोड़ ऊपर है तो आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल। हियर इज द 9 करोड़ रुपीस। देन इन एग्जाम्पल थ्री में कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीस 9 करोड़। इस केस में आपकी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट यू हैव टू सी बोथ द कंडीशंस। सो पहले केस में आपकी रिसिप्ट्स है सेल्स 50 लाख रुपीस और चेक के थ्रू कैश सेल्स 50 लाख रुपीस, चेक के थ्रू 3 करोड़, तो टोटल 3.5 करोड़। लोन रिसिप्ट्स जो है आपकी आपकी लोन मिला जो आपको 50 लाख रुपीस का, तो टोटल आपका 4 करोड़ रुपीस रिसिप्ट्स है। देखो टर्नओवर 9 करोड़, रिसिप्ट्स 4 करोड़, तो वी हैव टू चेक सेड अमाउंट। तो इस केस में कैश कितना है 50 लाख रुपीस, तो दिस इज द 12.5%। तो यही सेकंड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल, फिर भी सेकंड चेक कर सकते हो। उस केस में 4% है, तो दिस एग्जाम्पल 3 में भी आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, बिकॉज वन कंडीशन इज बोथ द कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड। एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इस केस में आपकी जो लिमिट होगी इट वुड बी 1 करोड़ रुपीस। जो टैक्स ऑडिट अबव 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर टैक्स ऑडिट। सो इन दिस केस turnover is 9 crore, so tax audit is applicable. Then next example 4, turnover in this case 10 crore rupees. तो इस केस में आपकी receipts and payments both this condition we have to check. फर्स्ट कंडीशन में आपको चेक करना है कैश सेल्स कितनी है 20 लाख रुपीस, चेक के थ्रू बैंक के थ्रू कितनी है 9.1, तो टोटल सेल्स है आपकी 9.3 करोड़ रुपीस। डेटर्स यहाँ पे रिसीव नहीं है, डेटर से ओनली डेटर इन द बुक्स 80 लाख रुपीस। लोन रिसिप्ट्स कैश के चेक के थ्रू 50 लाख रुपीस, तो टोटल जो है आपकी कैश सेल्स 20 लाख रुपीस और जो टोटल कैश सेल नहीं, टोटल रिसिप्ट्स 20 लाख रुपीस एंड बैंक रिसिप्ट्स 9.6। तो डेटर्स को हम ऐड नहीं करेंगे, दिस इज द डेटर्स अमाउंट रिसीव नहीं है, दिस इज डेटर इन बुक्स, तो टोटल रिसिप्ट्स इज 9.8 करोड़ रुपीस। देन लेट्स चेक 20 lakh divided by 9.8 crore, that would be विद इन द लिमिट, जो आपका विद इन लिमिट में आ जाएगा। एंड देन सेकेंड वन, टोटल पेमेंट जो कैश में पेमेंट है इट्स 20 लाख रुपीस, चेक में पेमेंट 2.3 करोड़ रुपीस, टोटल 2.5 करोड़। देन क्रेडिटर्स, दिस इज क्रेडिटर पेमेंट नहीं है, क्रेडिटर्स इन बुक्स, तो इसको हमने कंसिडर नहीं करना। इन्वेस्टमेंट आपकी बैंक के थ्रू जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है 1.5 करोड़ रुपीस, तो टोटल पेमेंट 4 करोड़ रुपीस, कैश पेमेंट 2 लाख रुपीस एंड चेक के थ्रू 0.2 करोड़, चेक के थ्रू इट्स 3.8 करोड़, फिगर इज रॉन्ग, 3.8 crore, this is total 3.8 crore, तो it would be 20 lakh divided by 4, 5%. So both the conditions, जो दोनों conditions हैं 2.04% है, this is 2.04% and this is 5%, within the limit both the condition fulfilled, तो आपकी लिमिट कितनी होगी 10 करोड़ रुपीस। टैक्स ऑडिट कब एप्लीकेबल होगा मोर देन 10 करोड़ रुपीस, बट इन दिस केस टर्नओवर इज 10 करोड़, टैक्स ऑडिट इज नॉट एप्लीकेबल। सो दिस इज रिगार्डिंग द 44AB क्लोज ए, जो हमारा प्रोवाइडेड उसमें मेंशन है कि आपकी बोथ दी कंडीशन फुलफिल करनी है, आपको डिजिटल पेमेंट मोर देन 95% है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट। नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss about section 44AD, section 44ADA and tax audit. You can say that section 44AD, section 40ADA read with section 44AB, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू, वेदर टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, प्रोफेशन में तो हमने डिस्कस कर लिया, लिमिट इज 50 लाख रुपीस। इन केस ऑफ अ बिजनेस, वेदर टैक्स ऑडिट पॉसिबल इफ टर्नओवर, सेल्स, ग्रोस रिसीव्ड्स डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीस। अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया था, तो प्लीज आप ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई सजेशन है, तो दैट जस्ट ए मोमेंट। So if you have any query, any suggestion, any feedback, you can send through the mail
आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मेरे को में भी भेज सकते हैं। बट ओनली वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ जो एक नॉर्मल टाइम्स है अप टू 10 और अप टू 11 PM, उसी टाइम तक मैसेज करो, बिकॉज मैनी टाइम वी रिसीव मैसेज अराउंड 12 o'clock जो नाइट में, या मॉर्निंग 12 AM है उस टाइम, या 1 बजे 2 बजे, तो इट्स नॉट गुड थिंग। आप मैसेज करो, नॉर्मल टाइम में 10 to 10 कर लो, इवन 9 to 11 कर लो, आप मैसेज कर दीजिए। और इवन प्लीज़ ऑल्सो मेंशन योर नेम। आप एक बार जब भी मैसेज करो किसी को, जस्ट गिव योर इंट्रोडक्शन। दिस इज द गुड थिंग, वी ऑल आर प्रोफेशनल्स। अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं कि ये क्वेरीज बस पूछ ली, गिव योर इंट्रोडक्शन। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द 44AD एंड 44AD रेड विद सेक्शन 44AB। और जो क्वेश्चन था उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। विल अगर आपका आंसर ठीक है तो इन आवर नेक्स्ट वीडियो मैं उनके नेम भी लूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।